My name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का, जिसका नाम है WBCs. In previous video we see the blood, then plasma, then the formed elements. Among the formed elements we studied the RBCs. Now we will have today glance about the WBCs. WBCs, that's white blood cells or white blood corpuscles. Is it? Simply, we will know about some general knowledge about the WBCs. WBCs are simply white blood corpuscles or white blood cells. These are also known as leukocytes. The first point about the WBCs is these are also known as leukocytes. The second point about WBCs, these are colorless. Why they are colorless? The answer is again simple. The RBCs was colored. They was colored because they contain the hemoglobin. These are colorless due to lack of hemoglobin. They do not have hemoglobin. That's why they are colorless. The third point about the WBCs is size. Largest among the formed elements, that's WBCs, RBCs, platelets, thrombocytes. They are largest. That's 12 to 20 mm. Is it? This is the size. Is it? Shape. Shape is either circular. Shape is either circular or irregular. Their shape is either circular or irregular. Is it? Simple point है, शेप क्या होती है, इधर सर्कुलर होती है और इरेगुलर होती है. ठीक है ना? वो क्यों होती है? ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस. वो हम देखते हैं देन इनकी शेप्स कैसे होती हैं. दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन दे शो hence show polymorphism. That's polymorphism means they show different shapes. Simple point. Now, the another point about the WBCs is they have well defined nucleus. Well defined nucleus. Important point. RBCs was without nucleus. At maturity, they lost their nucleus. And WBCs have well-defined nucleus. Among the another important point about the WBCs is well-defined nucleus. The another is they show movement like amoeba. Is it? ये क्या करते हैं? WBCs show movement like amoeba. क्या मैंने बताया? They show amoeba-like movements and is called diapedices. इनके मूवमेंट को क्या कहते हैं? This is also a very very important point about the WBCs. WBCs show what? They show movement like amoeba. That's why this is called diapedices. Is it? Now, look at towards the other points. The other features of regarding WBCs is their count. Count very small among formed elements. Among the formed elements, WBCs count is very small among formed elements. That is 6K2, that's 6,000 to 8K per millimeter cube of blood. So बहुत जो इनकी कंसंट्रेशन होती है बहुत कम होती है. फॉर्मेशन
formation of WBC, that is white blood corpuscles, is called leukopoiesis, and RBCs को हम क्या कहते थे? erythrocytosis. This is known as leukopoiesis or leukocytosis. Is it? Now, this formation occurs in, कहां पर होती है इनकी फॉर्मेशन? दैट इज बोन मैरो, और कहां पर होती हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होती हैं, ठीक है ना? और कहां पर होती हैं? प्योर स्पीच में होती हैं, और कहां पर होती हैं? स्प्लीन में, also in liver. These are the some organs where the formation of WBC, that's white blood corpuscles, occurs. Is it? Now, another important point regarding the WBCs is increase, यानी कि काउंट इंक्रीज हो जाती है, that is increase in count of WBCs is called, इंक्रीज जब WBCs होती हैं उसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस. Increase in the count of RBCs is simply known leukocytosis, and this leukocytosis is responsible for a disorder called leukocytosis cause leukemia. What's leukemia? It's blood cancer. Cancers are different kinds. Leukemia है, sarcoma है, melanoma है, different kinds of cancers we have, but leukemia is due to leukocytosis, and decrease in the concentration of WBCs is called leukocytopenia. What's leukocytopenia? Leukocytopenia is decrease in the concentration of WBCs. Is it leukemia? Now, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? This is the little information, general knowledge information about the RBCs. Now, अब हम RBCs को डिफरेंशिएट करते हैं 2 टाइप्स में. RBCs में क्या होता है? WBCs में मैंने बताया यहां पर क्या होता है? न्यूक्लियस. Is it? I already told you that WBCs has nucleus, and इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? ग्रेना. और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? This is cytoplasm. This cytoplasm contains nucleus, that is nucleus, and contains grana. So मैंने पहले बताया WBC के पास क्या होता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस में क्या होता है? ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस एंड ग्रेना, WBCs are differentiated into 2 types. Is it? That is, WBCs are differentiated into 2 types. That is, granulocytes and granulocytes. Granulocytes simply क्या है? Granulocytes means the WBCs which do not have grana particle, जिनमें absent हो उसे हम क्या कहते हैं? granulocytes, and which contains grana as granulocytes. अब
यहां पर और एक फिनोमिना होता है, दैट्स क्या, ये जो ग्रेना होता है, ग्रेना इज स्टैंडर्ड बाय डाइज। ग्रेना क्या होता है, ये जो ग्रेना होता है, दीज ग्रेना इज स्टैंडर्ड बाय डाइज, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डाइज। क्या, ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने क्या बताया याद रखना, ग्रेना जो होता है ये एग्रेनुलोसाइट्स हैं, ये जो ग्रेना होता है, ग्रेना इज स्टैंडर्ड बाय सम डाइज, डाई दैट्स कलर्ड, उसकी वजह से ये ग्रेनुलोसाइट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहले ग्रेनुलोसाइट्स में 2 टाइप्स होती हैं, दैट इज फर्स्ट इज मोनोसाइटोसिस एंड lymphocytosis. Granulocytes is of 2 types, monocytosis and lymphocytosis. Now, these granulocytes are divided into 3 types, but on the basis of dyes. As I already told you, these are stained by dyes. Granulocytes, grana is stained by some dyes, and on the basis of these dyes, these are divided into sub 3 categories, that is eosinophils, basionophils and neutrophils। ठीक है ना, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, 3 कैटेगरीज में, ग्रेनुलोसाइट्स ऑन द बेस ऑफ डाइज, दैट्स eosinophils, basionophils एंड neutrophils, ठीक है ना। एग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइटोसिस एंड लिम्फोसाइटोसिस में डिवाइड की गई हैं। यहां तक समझ में आपको आया। यहां हमने सिंपली क्या देखा, ग्रेना होता है एंड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस एंड ग्रेना की शेप में बेसिस पे हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स। अब जो होता है एग्रेनुलोसाइट्स हमने देखा 2 टाइप्स की, लेकिन ग्रेनुलोसाइट्स फर्दर 3 टाइप्स की थी, बट ऑन द बेसिस ऑफ किस पे थी वो, ऑन द बेसिस ऑफ डाइज, वो स्टैंडर्ड थी सम डाइज के साथ, ठीक है ना। अब हम देखते हैं पहले किन क्या बारे में, ग्रेनुलोसाइट्स हम पढ़ते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स मैंने कितना बताया, इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज eosinophils, basionophils and neutrophils। ये किसके बेस पे डिवाइड की गई है, ऑन द बेस ऑफ डाइज, डाइज के बेसिस पर, और हम फिर इनमें डिफरेंशिएट भी यहीं पर करते हैं। देन हम जाते हैं एग्रेनुलोसाइट्स, दैट्स मोनोसाइटोसिस एंड मोनोसाइटोसिस एंड लिम्फोसाइटोसिस। पहले हम देखते हैं eosinophils जो होती हैं। eosinophils आर स्टैंडर्ड बाय these are standard by acidic dyes called eosine, eosine एक डाई है, दैट्स केमिकल eosine, जिसकी वजह से हम eosinophils को स्टैंडर्ड करते हैं, एंड these take up acidic, hence take up acidic type. As the simple, how to remember which among these acidic type, that is eosinophils। eosino little resembles with acidic type, थोड़ा ना eosino मिलता है, थोड़ा acidic, eosino acid, ठीक है ना। एंड eosine जो डाई होती है, दैट्स eosino, that is eosinophils, एंड eosine डाई भी ये रिफ्लेक्ट करता है थोड़ा सा, यहां से भी मिल सकता है, सो दे आर एसिडिक टाइप, ठीक है ना। बेसिनोफिल्स, ठीक है ना, स्टैंडर्ड बाय डाइज कॉल्ड बेसिक डाइज। Basinophils are stained by basic dyes, as the basino names indicate, these are basic। basino, B stands for basic, ठीक है ना। बेसिक डाइज के साथ स्टेन की गई होती हैं, दैट इज कौन सी डाई, इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, दैट इज मिथाइलिन ब्लू।
So they are hence take up basic types. Now look at neutrophils. Neutrophils are neither stained by acidic dyes nor basic types. Stained by either acidic dyes nor basic. ठीक है ना? सो ये क्या होगी? न्यूट्रोफिल्स, दीज आर न्यूट्रल, इनमें ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, हेंस टेक अप न्यूट्रल टाइप. ये हमने डिफरेंशिएट किया ग्रेन्युलोसाइट्स, एजनो, बेजनो एंड न्यूट्रोफिल्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड डाइज. ठीक है ना? अब हम इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं और भी दूसरी चीज पे जो मैंने बताया, इनमें न्यूक्लियस होता है. दैट्स व्हाई दे गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट इज दे शो पॉलीमॉर्फिज्म. व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स. ठीक है ना? नाउ शेप्स ये हमने देखा इनका जो है ऑन द बेसिस ऑफ डाइज. नाउ हम अब इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस. इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस पे हम अब इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं. इनका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज बायलोब्ड. सपोज दिस इज सेल एंड सेल में न्यूक्लियस होगा लाइक दिस, बायलोब्ड. ठीक है ना? अब बेजनोफिलिस का जो न्यूक्लियस होगा दैट इज ट्रायलोब्ड. इंपॉर्टेंट एंड इजी टू रिमेंबर. एजनोफिलिस क्या होती हैं? एसिडिक होती हैं. बायलोब्ड न्यूक्लियस होता है. पॉलीमॉर्फिज्म, दे शो पॉलीमॉर्फिज्म. एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म शो ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स डू नॉट शो पॉलीमॉर्फिज्म. वो हम देखते हैं. न्यूक्लियस इज ट्रायलोब्ड. नाउ न्यूट्रोफिलिस न्यूक्लियस इज मल्टीलोब्ड. मल्टीलोब्ड सम बुक्स पे आप देखोगे, अगर आप कोई बुक पढ़ोगे, किसी बुक में आपको ये मिलेगा दैट 7 न्यूक्लियस, 2 3 4 5 6 7. सॉरी, नॉट 7 न्यूक्लियस, बट क्या होता है? न्यूक्लियस ने लोब बनाए होते हैं 7 लोब्स. ठीक है ना? दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज मल्टी लोब्ड. कितने इनको हम क्या कहते हैं? मल्टी लोब्ड. न्यूट्रोफिलिस, बेजनोफिलिस, एजनोफिलिस को हम क्या कहते हैं? बायलोब्ड, एजनोफिलिस, बेजनोफिलिस ट्राई एंड न्यूट्रोफिलिस मल्टी लोब्ड. नाउ on the basis of nucleus and add here and count. अब हम इन्हें काउंट के बेसिस पे भी यही डिफरेंशिएट कर लेते हैं. ठीक है ना? काउंट के बेसिस पर हम इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं. एजनोफिलिस जो होती हैं, एजनोफिलिस इज ऑफ 2 to 3%. एजनोफिलिस की जो काउंट होती हैं दैट इज 2 to 3%. ठीक है ना? बेजनोफिलिस इज ऑफ 0.5 to 1%. इंपॉर्टेंट है ये भी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. बेजनोफिलिस जो होती हैं 0.5 to 1% होती हैं. ठीक है ना? अब न्यूट्रोफिलिस जो होती हैं लार्जर, दैट इज 60 to 65%. ठीक है ना? दैट्स लार्जेस्ट इन काउंट. क्वेश्चन पूछा जा सकता है अमंग द डब्ल्यूबीसीज, ऑप्शन दिया गया होगा दैट एजनोफिलिस, बेजनोफिलिस, न्यूट्रोफिलिस, मोनोसाइटास और लिम्फोसाइटासिस, which among the following is largest in count? That is this neutrophils, that is 60 to 65%. ठीक है ना? अब
अब यहां तक हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं। सॉरी यहां पर क्या था, बेजनोफिल्स था यहां पर। नाउ वी विल डिफरेंशिएट देम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है ना। अब हम इन्हें किसकी बेस पर डिफरेंशिएट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। नाउ अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है ना। एजिनोफिल्स की जो फंक्शन है, दैट इज, इनकी जो फंक्शन होती है दैट इज मीडिएटेड एलर्जिक रिएक्शंस और पैरासिटिक रिएक्शंस। दैट इज एलर्जिक mediated parasitic reactions. The function of eosinophils is to show allergic reactions towards the allergic and parasitic reaction दिखाती है blood में, and help in dissolve clot. अब हमने क्या बताया, एजिनोफिल्स की जो मैंने फंक्शन बताई, क्या है फंक्शन मैंने बताई, इनकी जो फंक्शन है दैट इज एलर्जिक मीडिएटेड रिएक्शन एंड पैरासिटिक रिएक्शन ये दिखाती हैं, एंड हेल्प इन डिसॉल्व क्लॉट। ठीक है। बेजोफिल्स कंटेन होती हैं मास्ट सेल्स, दिस कंटेन मास्ट सेल्स, दिस मास्ट सेल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हमें तो पता है, एंड हेपारिन। अब बेजनोफिल्स मैंने क्या कहा, बेजनोफिल्स कंटेन मास्ट सेल्स एंड दी और सिक्रीट मास्ट सेल्स। व्हाट द मास्ट सेल सिक्रीट, मास्ट सेल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। ठीक है ना। सेरोटोनिन, हेपारिन जो है ये क्या है, एंटीकोगुलेंट। ठीक है ना। सेरोटोनिन जो है दैट इज इट शोज वासो कंट्रैक्शन, है ना। हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन जो है इट शोज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, हैंस बेजनोफिल्स शोज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। ठीक है ना। बेजनोफिल्स secretes what, mast cells. Then the mast cells secrete histamine. The function of histamine is inflammatory reactions. Serotonin, the function of serotonin is vasoconstriction, and the heparin is anticoagulant. ठीक है ना। This is the function of basophils. ठीक है ना। So what's the function of neutrophils? The function of neutrophils is simple here. Phagocytosis. Function of neutrophils is phagocytosis. ठीक है ना। इनकी फंक्शन क्या है, फैगोसाइटोसिस। मीन्स जब इनमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है, दे एंग्लिफाई दिस फॉरेन पार्टिकल्स, और क्या करता है, या और भी डेड सेल्स जो होती हैं उन्हें ये एंग्लफ करती है। कौन, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है ना। अब अबाउट द न्यूट्रोफिल्स आई वुड लाइक टू टेल सम मोर इंफॉर्मेशन। यहां पर हमने ग्रेनुलोसाइट्स को खत्म किया, लेकिन न्यूट्रोफिल्स के बारे में और कुछ मैं बताऊंगा। दैट इज न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है मल्टीलोब्ड, दैट 7 लोब्ड। ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाता है बाय मीन्स ऑफ स्टॉक। क्या हो जाता है, स्टॉक के साथ कुछ इससे साथ ऐड हो जाता है, उसे हम कहते हैं बार बॉडी। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बार बॉडी और ड्रम स्टिक। बार बॉडी और ड्रम स्टिक और इज नोन एज एक्स क्रोमेटिन। ठीक है ना। ये किसकी वजह से बनती है, बाय द ट्रांस फॉर्मेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। किन में होता है, इन मैमेलियन फीमेल्स। सिंपल पॉइंट मैंने बताया, जो न्यूट्रोफिल्स का
न्यूक्लियस होता है, मल्टीलोबड होता है। इस न्यूक्लियस के साथ बाय मीन्स ऑफ स्टॉक मीन्स अ ब्रिज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द बार बॉडीज, बार बॉडीज इसके साथ अटैच हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं बार बॉडी और स्टॉक और एक्स क्रोमेटिन। ये किसके साथ बनता है? बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। किन में बनता है? मैमेलियन फीमेल्स। ठीक है ना, यहां तक हमने क्या जाना? न्यूट्रोफिल्स, एजनोफिल्स, बेजनोफिल्स, दैट इज ग्रैनुलोसाइट्स। अब हम देखते हैं एग्रीनुलोसाइट्स। ठीक है ना, अब हम क्या पढ़ेंगे? एग्रीनुलोसाइट्स। एग्रीनुलोसाइट्स मैंने बताया इट्स ऑफ टू टाइप्स। ठीक है ना, क्या क्या है? मोनोसाइटोसिस एंड लिम्फोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस एंड लिम्फोसाइटोसिस, दीज आर एग्रीनुलोसाइट्स। एग्रीनुलोसाइट्स पहले एक डिफरेंशिएट यहां पर कम पढ़नी है, ग्रेनुलो एज कंपेयर टू ग्रेनुलोसाइट्स। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन ग्रेना, सो दे ना एसिडिक होंगी ना बेसिक टाइप होंगी। ठीक है ना। अब फिर हम उसके बाद जो ग्रेना देखा था एसिडिक बेसिक टाइप, उसके बाद हमने ग्रेनुलोसाइट्स को डिफरेंशिएट किया था ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस, because they show polymorphism. They do not show polymorphism. Simply, थोड़े से मोनोसाइटोसिस दिखाती है। मोनोसाइटोसिस is bean shaped nucleus or bean shaped or kidney shaped nucleus। ठीक है ना, बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। ठीक है ना। अब इसका जो न्यूक्लियस होता है सिंपली स्फेरिकल। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर? बिकॉज क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिम्फोसाइट अमंग WBCs is spherical or containing spherical nucleus, that is lymphocytosis। ठीक है ना, ये था न्यूक्लियस। अब इसके बाद हमने काउंट पे उनको डिफरेंशिएट किया था। अगर हम काउंट देखें, काउंट मोनोसाइटोसिस इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 8%। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, कितनी है? 6 to 8%। एंड लिम्फोसाइट्स इज 20 to 25%। इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी। काउंट जो है मोनोसाइटोसिस का 6 to 8% है एंड लिम्फोसाइट्स का क्या है? लिम्फोसाइट्स जो है 20 to 25% जो है इनका ये है काउंट। न्यूक्लियस और काउंट हमने देखा। अब हम देख लेते हैं थोड़ा इनकी फंक्शन के बारे में। ठीक है ना, फंक्शन पहले ही जो मोनोसाइटोसिस हैं दे शो फेगोसाइटोसिस, दैट इज द एनालॉगी टू, किनको एनालॉगी है? दैट इज दे आर एनालॉगी टू न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स को एनालॉगी है। न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइटोसिस क्या करती हैं? फेगोसाइटोसिस करती हैं। ठीक है ना। एक पॉइंट में यहां पर आपको बताता हूं, ब्लू पेन के साथ लिखता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोनोसाइटोसिस आर क्या है? मोनोसाइटोसिस आर macrophages in nature as they enter into tissues। मैंने यहां पर क्या लिख डाला? कुछ नहीं लिख डाला, सिंपल है। मोनोसाइटोसिस क्या है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज आपको समझ में आएगा तब जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम इम्यून सिस्टम के बारे में देखेंगे। वहां पर क्या है? मैक्रोफेज सेल्स जो है, ठीक है ना, मैक्रोफेज सेल्स जो है ये कब मैक्रोफेज होती हैं इन नेचर? व्हेन दे एंटर्स इनटू टिश्यूज। मोनोसाइटोसिस जब टिश्यूज में, ब्लड में से निकल के टिश्यू में एंटर होती हैं, देन दे चेंज इनटू मैक्रोफेज। नाउ व्हाट्स द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स? द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स इज, अगेन लिम्फोसाइट्स दो टाइप्स की होती हैं, दैट इज बी लिम्फोसाइट्स B lymphocytes and T lymphocytes।
ये क्या क्या सिक्रेट करते हैं? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स हमें बुकायर होती हैं, या टी लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी में हम देखेंगे ऑर्गन रिजेक्शन की टाइम होती हैं, और दे सिक्रेट इम्यूनोग्लोबिन दैट इज IgA IgE। बी लिम्फोसाइट्स सिक्रेट करती हैं ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ IgEs, ठीक है ना, वो हम वहीं पर देखेंगे। अब हम और एक दो पॉइंट ऐड कर लेते हैं WBCs के बारे में, ठीक है ना। लाइफ स्पान, 2 पॉइंट में और ऐड करना चाहता हूं, दैट इज लाइफ स्पान। लाइफ स्पान इज 1 to 2 days. That is very small as compared to or unlike RBCs. RBCs are 120 days. They are 1 to 2 days. Except किनके वजह, except lymphocytes. क्यों? lymphocytes हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हम इम्यूनिटी जब पढ़ेंगे वहीं पर देखेंगे, ठीक है ना। इनका जो लाइफ स्पान होता है कैन लिव फॉर ईयर्स, ये सालों तक भी चल सकती है, 1 या 2 साल, ठीक है ना, इनका लाइफ स्पान होता है। एक पॉइंट में ये जो यहां पर भूल गया था बोलना, दैट इज WBCs are also known as PMNL cells। ये टर्म है, मैंने आपको पहले बताया ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करती हैं, लेकिन ये टर्म में बोलना भूल गया था, दैट इज PMNL, पॉली मार्फो न्यूक्लियर सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, वो हमने देखा। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स क्यों कहते हैं? इनमें हमने देखा डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, दैट्स व्हाई दे शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। एंड दिस वाज होल अबाउट द WBCs। इसके बाद हम और भी इस वीडियो सीरीज को आगे ले जाते हैं। आप स्टे रहे हमारे वीडियोस के साथ, एंड थैंक यू।